So we have started the unit of quantum mechanics, and we have completed the expectation value. ठीक है जी? So any doubt about what we have done in previous class? No, sir. So we have defined expectation value as, for example, position. So it is psi square x dx simply. ठीक है जी? Yes, sir. But if this wave function is not normalized, if it is normalized, this is the equation for expectation value. And if psi is not normalized, you have to normalize this expectation value as well. So now your expectation value, anyone, we are using x symbol, so position value. So you have to divide by this limit. श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये एक टॉपिक रह गया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का पार्ट है ये, इफ योर वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, देन आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब फाइंड करनी है, यू हैव टू डिवाइड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अननॉर्मलाइज्ड या नॉट नॉर्मलाइज्ड फंक्शन विद द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. ठीक है जी? नॉट नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है? मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि नॉर्मलाइज्ड वो है जिसकी आप स्क्वायर करो तो वैल्यू 0 to 1 के बीच में आए, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी. ठीक है जी? तो नॉट नॉर्मलाइज का मतलब है इफ यू आर नॉट गेटिंग this range in between 0 and 1, then this function psi is not normalized. ठीक है जी? So you have to normalize it. Next article is Schrödinger equation. 1 second सर सर एक कर लेने दीजिए So we have derived the operators for momentum and energy as well. It is minus I h cross curly by curly x, and energy is I h cross curly by curly t. We'll make use of these expressions in next article. सर हो गया सर ठीक है जी? सो मोमेंटम वाला जो है, ये ऑपरेटर हमने कैसे फाइंड किया था? वी हैव डिफरेंशिएट दिस वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है जी? सो वी गॉट p operator. If we differentiate this wave function with respect to time, we'll get e operator. ठीक है जी? Now next article is Schrödinger equation. This is the basic equation, like Newton's law, second law role play in Newtonian mechanics. The same role Schrödinger equation plays in quantum mechanics. So if you have Schrödinger equation and its solution, you can solve any problem in quantum mechanics. So we start with the basic one. Total energy is sum of kinetic energy plus potential energy. Clear है बच्चे? Kinetic energy is half mv square and potential energy say v. It is a notation. ठीक है जी? Now further, kinetic energy in terms of momentum, p square by 2m plus v. So this is the energy relation. Multiply both sides by psi from right hand side. So E psi is equal to 1 by 2m p square psi plus v psi.
Now v here depends on x and t. क्लियर है जी? ई ऑपरेटर क्या था बच्चे? ई ऑपरेटर था आई एच क्रॉस करली बाय करली टी. ठीक है, सो ई साई क्या हो गया? सो ऑपरेटिंग with E on wave function psi is equivalent to multiplying it with I h cross, then taking first order derivative with respect to time. ठीक है जी? So ये एक relation हो गया. Similarly, we have P is equal to minus I h cross curly by curly x. So P psi क्या हो गया? P square पहले कर लेते हैं. P square क्या हो गया? माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा. आयोटा स्क्वायर इज -1. सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर. ठीक है जी? curly square by curly x square. If we operate p square on wave function psi, it is minus h cross square curly square psi by curly x square. एक second equation होगी. ठीक है, we are making use of these equations in equation number 1. So आपके पास right hand side पे left hand side पे क्या हो जाएगा? E psi is equivalent to I h cross curly psi by curly t. Simply. और यहाँ पे है आपके पास 1/2m. पी स्क्वायर साई की वैल्यू है माइनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. हाँ, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो चाहिए मुझे. सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m और साथ में है करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वी साई. ठीक है जी? दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन. वन डायमेंशन ये टाइम सिग्निफाई डिपेंडेंट. क्या कर रही है सर? क्या चीज बचा? सर ये सिग्निफाई क्या चीज कर रही है इक्वेशन? कुछ मतलब कुछ मैसेज होगा ना सर, मीनिंग बच्चे, होगा इसी की. इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप F इक्वल टू एम ए करते हो, है ना, तो ये क्या है आपके पास? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है आपको? सर फोर्स का फॉर्मूला. फोर्स का फॉर्मूला ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. आप इसको m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल माइनस टू. एफ, इस तरह भी लिख सकते हो. यस सर. ठीक है, सो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? यू ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन गेट पोजीशन x एट एनी टाइम t. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है? दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन you will get a wave function psi which depends on x and t, and if you are getting this wave function you can easily predict value of position coordinate and at time coordinate, particular time coordinate. आप उसकी position define कर सकते हो by operating with x. ठीक है, x operator के साथ मोमेंटम ऑपरेटर इसके ऊपर वेव फंक्शन के ऊपर लगाओगे तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली एनर्जी. हाँ जी बच्चे. सर पी स्क्वायर किया था सर, तो ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा सर? नेगेटिव साइन है मुझे ये है माइनस आई एच क्रॉस, है ना, सो माइनस पॉजिटिव हो गया. आइटा स्क्वायर एच क्रॉस, सॉरी स्क्वायर में आइटा स्क्वायर इज माइनस एच स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन गिव्स यू wave value of wave function and through which you can easily find position, momentum and energy of the particle or system. तो अब ये टाइम डिपेंडेंट है बच्चे. टाइम कोऑर्डिनेट भी है, पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है. हम इसको सेपरेट करके देखते हैं कि टाइम अगर स्टेशनरी वेव है कोई, तो उसको डील करने के लिए हमें टाइम डिपेंडेंट पार्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है, स्टेशनरी स्टेट क्या होगी वैसे बच्चे? व्हाट इज मेंट बाय स्टेशनरी स्टेट? आपकी प्रोबेबिलिटी थी. प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन की थी आपने? यही थी ना. if this does not depend on time कोऑर्डिनेट पे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, देन इट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट. ठीक है, सो अगर आप स्टेशनरी स्टेट के साथ डील कर रहे हो, सो यू डोंट नीड टाइम डिपेंडेंट पार्ट इन श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है जी. अब ये आपने वन डायमेंशन में लिखी है. सिमिलरली यू कैन इजीली राइट इन 3 डायमेंशन.
तो 3 डायमेंशन में इसकी फॉर्म क्या होगी? सिंपली बस ये जो टर्म है ये ऐड होती जाएगी। This is 3-dimension Schrödinger equation, time dependent Schrödinger equation. Now let us assume that this wave function psi xt, it consists of two functions, psi which is depending upon x only and t. So एक पोजीशन के ऊपर डिपेंड करने वाला फंक्शन, एक सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड करने वाला फंक्शन। आप इसको कैपिटल साई लिख सकते हो, ठीक है, ये जो भी हम नोटेशन यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट। Clear Abhijit? So our wave function is a product of two wave functions. One depends on position only and another one depends on time only. Let us try to substitute this wave function in Schrödinger equation. One dimensional का केस करते हैं अभी। So one dimensional केस में इक्वेशन थी I H cross curly by curly t psi. साई की जगह हमने स्मॉल वाला वेव फंक्शन और ये तो सब्स्टिट्यूट कर कैपिटल टी क्या है सर? एनी फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन टाइम। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाय 2m, और उसके बाद है करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, यहां भी फिर से साई एक्स टी एक्स। सो वेव फंक्शन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, प्लस v ऑफ यहां भी साई एक्स टी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो मुझे इसको। On left hand side you are carrying out partial differentiation first order with respect to time. किसका? You have two wave function, प्रोडक्ट में आपके पास दो वेव फंक्शन है, पोजीशन का वेव फंक्शन और टाइम का। तो इफ यू आर कैरिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन फंक्शन, तो क्या होगा मुझे? This will be a constant, it will come out. So ये होगा I H cross psi x curly t by curly small t। ठीक है जी। सिमिलरली इस साइड पे आप x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो सेकंड ऑर्डर, पोजीशन वेव फंक्शन वाले का और टाइम वाले का। इस केस में अब टाइम वाला कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो यू विल सिंपली गेट h स्क्वायर बाय 2m t करली स्क्वायर psi बाय करली x स्क्वायर प्लस v psi x dx t t। सर आपने ऊपर भी दो जगह टी, ठीक है जी। अब इसमें कॉमन क्या बचे, क्या चीज कॉमन है? यहां पे हमारे पास t है, यहां पे भी t है। सो टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट सिर्फ यही है राइट हैंड साइड पे। इफ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय कैपिटल T, सो विल सिंपली गेट कैपिटल T, और यहां इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है पोजीशन का सिर्फ यही पार्ट है। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय psi x t t, so divides both sides। चेंज कर दूं बच्चे स्लाइड? हाँ यस सर। So on dividing we'll simply get I H cross by capital T dt by d of t। मुझे पीछे एक यहाँ मिस्टेक रह गई है। अब यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था ना, नाउ इफ यू हैव ओनली फंक्शन लेफ्ट विद टाइम ओनली, सो ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, सो आप
ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं इसको कंप्लीट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाय 2m 1 बाय साई डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस v। ठीक है जी। Now we have, in beginning we have written that v depends on position and time, but in most of the problems of quantum mechanics, सर v के साथ एक साई x भी तो आएगा। बच्चे जब दोनों तरफ डिवाइड करोगे आप साई और टी से, तो यहाँ जो साई और टी था वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। सर साई, सर वहां पे खाली t लिखा था शायद आपने पीछे। अच्छा ठीक बच्चे है, यहाँ पे सॉरी। है ना। ओके सर, ओके सर। So in most of the problem in quantum mechanics, v is independent of time. ठीक है। So if we assume this, that our potential is function of x only, then we can simplify the above equation. तो अब ऊपर ऊपर क्या है बचे आपके पास, राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन कोऑर्डिनेट ओनली बिकॉज साई डिपेंड्स ऑन x और ये डेरिवेटिव भी x का है। नाउ योर v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x ओनली, वी हैव ओमिटेड टाइम, ठीक है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव t। सर ये स्टेटमेंट क्या लिखी है सर आपने? most of the problem in quantum mechanics, the potential is independent of time, ठीक है। सो आपका जो पोटेंशियल है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। अगर आपका पोटेंशियल टाइम का फंक्शन है तब जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो आप कर नहीं सकते, तो आपको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टाइम डिपेंडेंट एज वेल एज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास ओनली t विच डिपेंड्स ऑन टाइम और ये डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t है, ठीक है। तो अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और राइट हैंड साइड है फंक्शन ऑफ पोजीशन या स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो दो ओनली वे विच बोथ साइड्स, ये हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, द ओनली वे विद बोथ साइड्स विल बी इक्वल इज दैट ईच एक्सप्रेशन शुड बी ए, क्या होना चाहिए बच्चे, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम का फंक्शन है सिर्फ, राइट हैंड साइड पे पोजीशन का फंक्शन है स्पेस कोऑर्डिनेट का। अब दोनों के बीच में हम लिख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। सो there is only one possibility when we can place equal to sign here, that each value should be constant. So दोनों की values constant होनी चाहिए and let us put this constant as energy E. सर एक बार फिर से बता दो क्या कहा था, नेट डिस्टर्ब हो गया था। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली ये, एंड राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। सो ये दोनों बराबर होंगे कब, व्हेन ईच वैल्यू इज, लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट हो, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कांस्टेंट हो, एंड वी आर पुटिंग दिस कांस्टेंट एज E एनर्जी, ठीक है जी। सो ये क्या हो गया, आई एच क्रॉस बाय टी डी टी बाय डी ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू ई एंड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर 1 बाय साई भी है साथ में प्लस v इज इक्वल टू ई। तो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, ठीक है जी। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, सो वी हैव, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो सो वी हैव आई एच क्रॉस डी टी बाय डी ऑफ टी इज इक्वल टू ई साई, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो विल गेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस v psi is equal to E psi. So this is time dependent part of Schrodinger equation and this is time independent part of Schrodinger equation.
ठीक है जी। सर ये फर्स्ट वाले में आपने ई साई तो लिख दिया, वो वहां पे तो सर साई था ही नहीं सर। ई टी है, LHS सॉरी सॉरी सॉरी, टी है, टी। Can you write solution of this equation, this type of equation, time dependent part of Schrodinger equation? Can you write solution? कैसा होना चाहिए मुझे इसका solution? So generally जो आपकी time independent part है ना, ये second equation जो है, ये first equation है, ये second equation. So second equation will be applied in most of the problems. ठीक है? First equation का solution simple है. First equation है आपकी. सर एक मिनट सर, पिछली स्लाइड लगा दी। हो गया बच्चे? Yes, sir. So equation थी आपकी I h cross dt by d of t is equal to E into t. So I can rewrite this equation as dt by capital T is equal to minus I e by h cross dt. ठीक है? So on integrating with respect to time, I can easily find the solution as, ये आप solve कर सकते हो easily, e raised to minus iota e t by h cross. So this is the solution of time dependent part of Schrodinger equation. ठीक है? So अब आपका wave function क्या हो गया? कैपिटल वाला, which depends on x and t is equal to psi of x. ये टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे उस इक्वेशन को, तो वहां से वेव फंक्शन आएगा, और दूसरा वेव फंक्शन था आपके पास t मल्टीप्लाई, यहाँ पे t हो रहा था, सो t की जगह मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ. ठीक है? सो दिस इज योर सॉल्यूशन, कंप्लीट वेव फंक्शन कैपिटल साई xt फॉर वन डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. अच्छा, ये वेव फंक्शन जो आया हमारा, डज इट रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन? किसी स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है वेव फंक्शन? स्टेशनरी स्टेट की क्या कंडीशन थी? क्या कंडीशन थी मुझे कि आपकी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, अगर मैं सिंपल वर्ड में लिख दूं, व्हिच इज टाइम इक्वल से टू इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो साई स्टार साई कैपिटल वाला, इसको करके देखते हैं. सो ये तो x है, इसमें साई ऑफ x, सो हमें अभी इसका मालूम नहीं है कि इमेजिनरी है रियल है, सो इसको साई स्टार ही लिख देते हैं, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, सो ये हो गया प्लस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा करना है ना, तो ये प्लस बन जाएगा. सो ई टी बाय एच क्रॉस, और साई एज इट इज साई ई रेस्ट टू माइनस आयोटा ई टी बाय एच क्रॉस. सो ये तो तो ये क्या कैंसिल हो लिखा गया. है सर लेंथ के पहले? Probability per unit length. ठीक है? So you will get simply this. This is independent of time. ठीक है? So this wave function represents a stationary state. ये तब है जब आपने potential को independent of time लिया. क्लियर है बच्चे इसका? सर इस चीज का मतलब मीनिंग क्या है कि जब हम, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही. ओके सर, ठीक है? मैंने अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आपको क्या बताया था, एवरेज और एक्सपेक्टेशन में, कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी नंबर्स जो थे x1 x2 x3, ये टाइम के साथ चेंज हो रहे थे. अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे
तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी और आपका जो वेव फंक्शन है वो स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेशनरी स्टेट में आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन और एवरेज बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? नाउ लेट अस अप्लाई this Schrodinger equation. So it is, इसको टाइम इंडिपेंडेंट को मैं रीराइट कर रहा हूं मुझे, ठीक है, जो इसकी फेमस फॉर्म है मैं उसी फॉर्म में इसको लिख देता हूं 2m by h cross square e minus v psi is equal to 0. So I have rewritten time independent part of Schrodinger equation. ठीक है, so time independent in one dimension. Now let us apply this equation to particular problems. आपके syllabus में है बच्चे problem particle in one dimensional infinite potential well. So we have to solve the problem of एक particle है infinite potential well में. So let us draw this कि problem है क्या. So x is equal to 0 for example and x is equal to a. So this is the width of the potential well. So यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं और another straight line ये है, ठीक है। We have a particle here of mass m, ठीक है, this is infinite, so potential, ठीक है, this is wall A, this is wall B. So what is given to us is infinite potential well. So इसका क्या मीनिंग है कि we have given that Vx is equal to 0 when x lies between 0 to a. So यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है this is 0, ठीक है, in between x is equal to 0 to x is equal to a. इतनी विड्थ के अंदर हमारे पास पोटेंशियल 0 है। अदरवाइज क्या है, इसके बाहर जाते ही इन्फिनिटी हो जाता है फॉर x ग्रेटर देन a या x लेस देन 0। सो ये केस के लिए इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ठीक है जी। तो दिस केस इज गिवन। सर ये इक्वेशन कहाँ से आई है सर? बच्चे अगर आपको इन्फिनिट पोटेंशियल वेल लिखना है तो उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड यही है। कौन सी इक्वेशन पूछ रहे हो, ऊपर वाली, टॉप वाली? यस सर। बच्चे ये जो ये इक्वेशन है ना हमारी, इसको मैंने रीराइट किया है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है। इसको करके दिखाऊं या इजीली सिर्फ इस टर्म से डिवाइड किया बोथ साइड्स पे और रीराइट किए टर्म्स, ठीक है जी। सो अब इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं मुझे। फर्स्ट इज क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मास m है ये कितनी एनर्जी ले सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है एनर्जी की? 0 एनर्जी ले सकता है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। ये जो पार्टिकल है मास m है जिसका, ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी एनर्जी लेने की? सो पहली E इज इक्वल टू 0 भी ले सकता है, रेस्ट मास रेस्ट पे भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी एनर्जी ले सकता है E ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूस एनर्जी, ठीक है, कुछ भी एनर्जी ले सकता है। पर ये पार्टिकल ऑफ मास m जैसे इस वॉल की तरफ गया, ए वॉल की तरफ, क्या होगा भैया, क्या पॉसिबिलिटी है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। सो जैसे ही 0 पोटेंशियल से जैसे ही इस वॉल की तरफ गया, ये वॉल पे टच करते ही इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल मिलेगा। इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल रिलेटेड है फोर्स के साथ विद नेगेटिव साइन। सो जैसे ही ये वॉल के पास आया, इसको फोर्स मिलेगी इनफाइनाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। सो इट मींस द पार्टिकल कैन नेवर क्रॉस दिस वेल। सो ए के लेफ्ट पे नहीं जा सकता, बी के राइट पे नहीं जा सकता, इट विल रिमेन इनसाइड दिस वेल, ठीक है। सर एग्जैक्टली 0 भी नहीं हो सकता, क्या मतलब चीज? एग्जैक्टली वो x सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये वाला जो आपने बताया। मुझे क्लासिकल पिक्चर में ये अगर पार्टिकल है मास m का,
ये रेस्ट पे भी आ सकता है, एनर्जी 0 भी हो सकती है इसकी, या अगर एनर्जी कोई भी एनर्जी ले सकता है, जैसे 0.1 0.21 कुछ भी, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये मूव करता हुआ, फॉर एग्जांपल ये वॉल ए की तरफ जा रहा है, इनसाइड द पोटेंशियल आपके पास इनसाइड द वेल 0 पोटेंशियल है, ठीक है, 0 पोटेंशियल मतलब 0 फोर्स। फॉर एग्जांपल इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो ए पे जैसे ही ये टच करेगा ए वॉल पे, क्या फील होगा इसको, क्या चेंज होगा, पोटेंशियल विल चेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, फोर्स इज F इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। सो इंफिनिटी पोटेंशियल होते ही इसकी फोर्स भी इंफिनिटी में लगेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन की, माइनस साइन है। सो ये जैसे ही यहाँ पे टच करेगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, वेल के अंदर ही। सो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ बी की तरफ गया, यहां से भी ये रिफ्लेक्ट बैक होगा वापस। सो इट विल नेवर क्रॉस द लिमिट्स, x इज इक्वल टू 0 और a के बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। So particle will move back and forth in between these limits, x is equal to 0 and x is equal to a, ठीक है। अब है क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें देखते हैं कि एनर्जी 0 रेस्ट पे हो भी सकता है या नहीं हो सकता, एनर्जी कुछ भी ले लेगा या पर्टिकुलर एनर्जी ही ले सकता है। सो क्वांटम पिक्चर, क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपके पास इक्वेशन क्या है, ऊपर मैंने लिखी हुई है। So d square psi by dx square plus 2m by h cross square e minus v is equal to 0. So we have to solve this equation in between this length, ठीक है, x is equal to 0 से x is equal to a, क्योंकि उसके बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप चाहे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करो, पर माइनस इन्फिनिटी टू x is equal to a वेव फंक्शन आपका है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल बाहर जा ही नहीं सकता। सिमिलरली x is equal to a से x is equal to प्लस इन्फिनिटी, वेव फंक्शन इज 0, ठीक है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर दिस मच रेंज ओनली, और इस रेंज के लिए हमें मालूम है हमारा पोटेंशियल 0 है। सो वी हैव रीराइट दिस इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल 2me by h cross square psi is equal to 0 because Vx is equal to 0 in between 0 to a. Can you solve this equation? मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस से इसको मैंने लिख दिया के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0 वेयर के इज इक्वल टू 2me बाय h क्रॉस स्क्वेयर, ठीक है। नाउ दिस इज सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ये आपने ऑसिलेशन और वाइब्रेशन वाले यूनिट में किया था मुझे, SHM है ना, SHM में आपने किया था ये। सो इस तरह की इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन होता है आइदर साइन में या कोसाइन में। सो हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या थी, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था या मीन तो पोजीशन एक क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू सर समझ नहीं आ रहा सर, एक बार फिर बता दीजिए। बचे क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू में आप सिंपली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इस प्रॉब्लम को अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज श्रोडिंगर इक्वेशन विल गिव यू द वेव फंक्शन, ठीक है। सो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन जब अप्लाई की, कहां अप्लाई करोगे, इस पोटेंशियल वेल में। इसके बाहर जो है वेव फंक्शन 0 है, साई x इज इक्वल टू 0 हियर, साई x इज इक्वल टू 0 हियर, साई x इज वैलिड ओनली फॉर इन बिटवीन द वेल, ठीक है। सो उस रेंज में अगर आप ये श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करोगे, उस रेंज के लिए आपके पास पोटेंशियल जो है वो 0 है। सो मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी और ये इक्वेशन सिंपली ये लिख दी, ठीक है। e माइनस वी की जगह सिंपली e आ गया, और ये जो है इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया के स्क्वायर, सिंपलीफाई करना था इक्वेशन को। सो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अभी क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने की एफर्ट है, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो वी हैव टू functions sine and cosine, because we do not know whether particle is at mean position or extreme position. So sine and cosine independently are their solution of that differential equation, and their linear combination is also the solution of that differential equation. अब आ जाती हैं बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि हमें a और b मालूम नहीं है, so we have to solve this. Now, since the particle will remain inside the box because of infinite barrier of the wall, ये भी उन्हें explain किया था कि reflect back हो जाएगी. So probability of finding the particle outside the box is 0.
So psi x is equal to 0 outside the box. ठीक है जी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. नाउ अब हम यूटिलाइज करेंगे वेल बिहेव्ड फंक्शन की प्रॉपर्टीज का. नाउ सिंस वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट द बाउंड्रीज, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज है ना आपकी, बाउंड्री नंबर 1 एंड बाउंड्री नंबर 2, सो इन पे आपका वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 होते ही और यहाँ पे इमीडिएटली कोई और वैल्यू ले लेगा. सो इस पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन फॉल्स पे. तो wave function must be continuous at the boundaries, that is x is equal to 0 और x is equal to a. अब बाहर 0 है तो यहां कितना होना चाहिए मुझे कंटिन्यूटी के लिए? if wave Zero function is 0, this side और this side भी 0 है, so for continuity उसको यहां भी 0 होना पड़ेगा. so ये हमारी पहली ये बाउंड्री कंडीशन हो गई. so psi x is equal to 0 at x is equal to 0. Also psi x is equal to 0 at x is equal to a. A या capital L, different books use different notation. So these are our boundary conditions. So let us apply these boundary conditions to above solution. ठीक है जी. So पहली वाली boundary condition लगाते हैं जब, so wave function क्या हो जाएगा? Wave function should be 0 is equal to a sin x, x 0 है, plus b cos k of x 0. तो यहां से क्या आ गया मुझे आपके पास? ये 0 हो गया प्लस b टाइम्स cos of 0. cos of 0 is 1. so यहां से आपके पास आ गया कि b is equal to 0. so ये जो हमारा वेव फंक्शन था, ये अब बोल रहा है कि psi x जो है इट इज a sin kx ओनली, क्योंकि b वाली जो टर्म है वो 0 हो गई, बिकॉज फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन वी हैव डिराइव्ड b is equal to 0. so अब आपके पास नया फंक्शन आ गया ये. now we apply this boundary condition second one to the new wave function. तो अब यहां अप्लाई करते हैं. so wave function should be 0, ठीक है, at x is equal to a sin k of a. ठीक है, अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है. सो आइदर पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा. अब अगर आपने a को 0 पुट कर दिया तो आपका वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा. So it means particle even do not exist inside the well as well. But ये तो contradictory है. हम तो बोल रहे हैं कि particle of mass m exist कर रहा है उसके अंदर. So it means a is not equal to 0. a cannot be 0 implies sin of ka is equal to 0. So sin of ka is equal to 0. एंगल कितना होना चाहिए उसे? ka की किन वैल्यूज के लिए sin 0 हो जाएगा? 0 pi. So ka should be equal to n pi. ठीक है जी. n की वैल्यू 1 2 3 so on. So k क्या हो गया? n pi by a. n is equal to 0 क्यों नहीं लिया बच्चे? n की वैल्यू 1 से क्यों स्टार्ट की? We cannot take n is equal to 0 because it is not permissible, because it will make the wave function 0 everywhere, even inside the box. So इसलिए हमने n is equal to 0 avoid किया. ठीक है. So अब ये k की वैल्यू आ गई. k की वैल्यू हमने क्या यूज की थी? 2me by h क्रॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट. ठीक है, ये k की वैल्यू थी, ये आ गई. अब हमारे पास बराबर है a के. सो यहां से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर. दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द वेल. n स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है जी. दिस n इज कॉल्ड क्वांटम नंबर. n is called quantum number. and energy, ये जो आपने यहाँ एनर्जी देखी है अभी. हाँ जी बच्चे बोलो. सर एक
डाउट था सर, एक बार ये बता दो बाउंड्री कंडीशन पे साई की वैल्यू सर 0 थी, तो साई की वैल्यू 0 कैसे है बाउंड्री? बजट साई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये वेल दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। सो आपके पास ये इनफिनिट पोटेंशियल वेल था, आपका वेव फंक्शन यहाँ 0 है, यहाँ नॉन जीरो है, यहाँ फिर से 0 है। अब अगर आपका वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ से 0 होते होते वो इमीडिएटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिमिलरली यहाँ पे 0 होते होते कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन की वजह से वो यहाँ पे भी 0 होगा, बाउंड्री पे भी। सो साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। यहाँ नॉन जीरो है, यहाँ हमें फाइंड करना है कि है कितना वो, बट हमें मालूम है आउटसाइड दिस वेल दिस वेव फंक्शन इज 0। तो वॉल पे भी क्या होगा, वॉल पे भी 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अभी ये जो वेव फंक्शन है ना, यहाँ जो हम निकालेंगे वेव फंक्शन, ये भी आपकी ये जो बाउंड्री कंडीशन वाली जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इस वेव फंक्शन से भी अगर x इज इक्वल 0 पे फाइंड करोगे तो यहाँ से भी आपको ये 0 वैल्यू ही देगा, तो इस साइड से भी वो 0 वैल्यू ही देगा आपको। तो वेव फंक्शन शुड सेटिस्फाई, चाहे वेव फंक्शन इनसाइड द वेल है या आउटसाइड द वेल है, इट शुड सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन कंडीशन। वहां से हमने ये बाउंड्री कंडीशंस निकाली, ठीक है जी। अब यहाँ से आपका जो एनर्जी आपने निकाली, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम नंबर n, ठीक है। तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, इसके सबस्क्रिप्ट में n लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे कि n इज इक्वल टू 1 है तो उसकी एनर्जी है, 2 है तो एंड सो ऑन। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। सो E1 n की वैल्यू 1 2 3 ऑनवर्ड्स है, E1 क्या होगा, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी n इज इक्वल टू 1 के लिए, दिस इज द मिनिमम एनर्जी a particle can have inside the infinite potential well। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बोल रहे थे कि 0 भी ले सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में आप बोल रहे हो कि वो 0 एनर्जी ले नहीं सकता, इट शुड हैव सर्टेन मिनिमम एनर्जी फॉर n इज इक्वल टू 1। मिनिमम एनर्जी उसके पास है, इट मींस पार्टिकल कैन नॉट बी एट रेस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, particle inside the infinite potential well cannot be at rest, whereas classical mechanics says that it can have 0 energy, which means particle is at rest, ठीक है। तो एक ये बिग डिफरेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद है E2, E2 आ गया आपके पास 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। E3 9 टाइम्स, अगर मैं इसको 4 टाइम्स E1 लिख दूं तो ये 9 टाइम्स E1 हो गया। E4 जो है 16 टाइम्स E1 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि एनर्जी लेवल्स जो हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। सो अगर ये E1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये E2 है n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आपका E3 जो है वो थोड़ा ऊपर होगा, इक्वली स्पेस नहीं है, E4 और ऊपर होगा, ठीक है। सो दिस इज 16 E1, this is 9 E1, this is 4 E1, and this is E1 itself. So energy levels are not equally spaced. Particle cannot have any amount of energy. It can have discrete energy. E1 ले सकता है, E2 ले सकता है, E3, E4. In between नहीं ले सकता, ठीक है। So कोई random energy नहीं ले सकता. They have discrete or particular energies, values of energy for a particle in quantum mechanics, whereas classical mechanics says that we can have any possible energy inside the well for the particle, ठीक है। So दो big difference हमें इसी क्वेश्चन से पता लग रहे हैं। Classical mechanics says particle can have 0 energy, it should be at rest, ठीक है, whereas quantum mechanics says that it cannot be at rest. Energy levels are equally spaced in not equally spaced in quantum mechanics, and particle cannot have any energy in quantum mechanics, whereas in classical mechanics it can have any amount of energy, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास वेव फंक्शन, यही आर्टिकल बचे आपके पास, इसमें अब वेव फंक्शन करना है। तो वेव फंक्शन था हमारे पास साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स था, के की जगह मैंने एन पाई एक्स बाय ए, तो ये वैल्यू लिख दी। पर ए तो अभी भी आपको मालूम नहीं है ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब सिंस मैंने के की वैल्यू एन पाई बाय ए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, सो ये एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है वेव फंक्शन, सो डिफरेंट एन की वैल्यू के लिए वेव फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। सो इसको डिनोट करने के लिए मैं सबस्क्रिप्ट में एक एन डाल देता हूँ वेव फंक्शन, सो साई एन। So psi n has this value in between this range and it is 0 for x less than 0 या x greater than a. Next step is we have to find the value of a. क्योंकि जब आप नॉर्मल इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास रेंज 0 to 1 के बीच में नहीं आएगी। सो फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हो। सो अब बचे हमने देखना है कि इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल्स ट्यूट शीट में भी है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या कंडीशन थी बच्चे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एन लिख देता हूँ, साई एन डी एक्स ये 1 होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब मेरी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो है नहीं, क्योंकि उसके बाहर जो है x इज इक्वल टू 0 और a के बीच में ही वेव फंक्शन नॉन जीरो है, बाकी जगह तो 0 है। तो मैं ये रेंज लिमिट कर देता हूँ, ठीक है। सो साई एन स्टार साई एन डी एक्स इज इक्वल टू 1। साई एन स्टार क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस वेव फंक्शन, क्या होगा बच्चे इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि कोई आयोटा का सिंबल नहीं है यहाँ पे। सो एन पाई एक्स बाय ए। So if I substitute their values, so I simply get 0 to a, ठीक है, a square बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। So inside the integral we have sin square n pi x by a, this should be equal to 1. ठीक है जी। नाउ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, अब ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, आप भी इसको डायरेक्ट ही यूज करोगे। सो a square into a by 2, this integral sin square n pi x by a dx, its value is a by 2. So next class start हो गई है। Start हो गई, okay बेटे, Yes, so let me message conclude. आ रहे हैं। So let us stop here, ठीक है। so यहां से सिंपली आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 by a स्क्वायर रूट। so इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके।